Hello everyone and welcome to another session. So this is our third session in the series of complete SAP UI5 and Fiori course. इसके पिछले sessions में we had covered what is SAP UI5 and Fiori, and then we had started working on the SAP UI5 walkthrough tutorial on SAP SDK demo kit. So far, the topics which we have covered: controls, XML views, modules, JSON model, descriptor of the application, pages and panels, and nested views. So now our next topic would be dialogues and fragments. So देखो fragments क्या होता है? Fragments are lightweight UI components which can be reused but do not have any controllers. ठीक है? कोई ऐसा व्यू अगर आप बनाना चाहते हो which is reusable across multiple views, and when you want to exchange some parts of a view against one another, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो? फ्रैगमेंट बना सकते हो विच विल नॉट हैव इट्स ओन कंट्रोलर, बट इट विल बी अ लाइट वेट व्यू. तो आप एक व्यू, छोटा सा व्यू लेट्स से बना के रख लिया, उसको अगर डिफरेंट व्यूज के अंदर इंटीग्रेट करना है तो वो कर सकते हो आप. अक्रॉस मल्टीपल व्यूज अगर सेम फ्रैगमेंट को यूज करना है तो वो भी कर सकते हो. ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं. Now let's go to our view, and inside view we have a view called hello panel.view.xml. Let me just close the terminal. So content के अंदर we will create one button. So far जो हमारा ये ऐप रनिंग हो रहा है, I will just show you on the browser how it is looking so far. हमने एक पेज क्रिएट किया था वॉक थ्रू, जिसके अंदर एक पैनल था, एक बटन, इनपुट फील्ड, सिंपल एंड डिस्क्रिप्शन. ठीक है. नाउ हम क्या करेंगे, अपने हेलो पैनल व्यू में लेट्स create one button, and this button will have certain properties like id, which is going to be hello dialog button, and text, which is going to be I18n open dialog button text, and then you can have a press event which is going to be bind to on open dialog. Okay, and the class which we are going to set as SAP UI small margin end. ठीक है, and then you can close this. तो ये बटन ऐड कर दिया है हमने. इसके बाद हम क्या करेंगे, डायलॉग फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं. तो इनसाइड आवर व्यू, जो व्यू फोल्डर है उसके अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लो एंड नेम इट एज हेलो डायलॉग डॉट फ्रैगमेंट डॉट एक्सएमएल. सिमिलरली जैसे व्यू को क्रिएट करते टाइम हम डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल करते हैं, फ्रैगमेंट के केस में डॉट फ्रैगमेंट डॉट एक्सएमएल. ठीक है. इसमें you just make sure the first character is capital letter, so like this, hello dialog dot fragment dot xml. इसको भी सेम तरह से ही बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे फ्रैगमेंट लिखेंगे. इन केस ऑफ व्यू जो होता है वहाँ पे व्यू रहता है, राइट, definition, and then you have xml namespace which is going to be sap dot m, and xml ns colon core which is going to be sap.ui.core. ठीक है, and then you can close this. Inside this fragment definition you can define a dialog with certain properties. First is going to be id, which is hello dialog, and second I will keep only the title for now, which is going to be hello. Let's bring the recipient here.
आई थिंक इसकी जगह सिर्फ क्लोजिंग टैग रख लेते हैं, दिस शुड बी इनफ। ठीक है, नाउ यू कैन सेव दिस फाइल एज वेल। एंड next, since we have added this event to this event handler, press right, so on open dialog create कर लेते हैं, and that will go inside the controller of this view which is hello panel dot controller। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। रिमेंबर, एवरी फंक्शन हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम कॉमा। तो एक async फंक्शन बना लेंगे, open dialog, and this is going to have, you can create dialog लेजीली। ठीक है, नाउ लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है कि जब तक किसी रिसोर्स को आपको लोड करने की जरूरत नहीं है तब तक उसे आप लोड मत करो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लेजी लोडिंग। यहाँ पे इस केस में डायलॉग को जब तक लोड करने की जरूरत नहीं है तब तक उसे लोड नहीं करेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट सिंपली ऐड हियर दिस डॉट ओ डायलॉग, एंड यू कैन कीप टू क्वेश्चन मार्क्स एंड देन use the await keyword and this dot load fragment, and you can pass a JSON inside this load fragment method. This will have a name property, और name में आप क्या करोगे, जो hello dialog fragment है ना उसका पाथ मेंशन करोगे। उसका पाथ मेंशन करने के लिए क्या होगा, ui5 डॉट वॉक थ्रू जब डालोगे और UGH, देन ये पाथ क्या हुआ, आपका वेब ऐप का पाथ हुआ, राइट। उसके बाद यू हैव टू गो इनसाइड व्यू एंड देन यू हैव टू mention the name of the fragment which is hello dialog। okay, now once this this dot load fragment कॉल कर रहे हो आप, ये fragment जो है वो लोड हो जाएगा। इस जस्ट कि आपको जहां इसका रेफरेंस रख रहे हो, जैसे इस फ्रैगमेंट को लोड करना है, इसमें नेम पास कर दिया आपने, बट यू विल हैव टू ओपन दैट डायलॉग, देन ओनली इट विल गेट ओपन। तो जब आप ओपन डायलॉग, ये फंक्शन ट्रिगर हो रहा है यहाँ पे, इस बटन को आप क्लिक कर रहे हो, from here you are pressing this button, then on open dialog कॉल होगा, then you want to open this। तो first यहाँ पे just it is just created at the moment, it will not open। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, this dot o dialog को यूज करके, this reference variable you can use, and then you will have access to this property called method called open। ठीक है, now जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो फिर ये डायलॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। और एक हमने जो टेक्स्ट ऐड किया है, ओपन डायलॉग बटन टेक्स्ट, यहाँ पे ओपन डायलॉग बटन टेक्स्ट, उसको हम ऐड कर लेते हैं i18 फाइल में। विल गो हियर एंड एट द बॉटम इन द हेलो पैनल वी विल कीप दिस एज इट इज, से हेलो विद डायलॉग। इसको एक बार चेक कर लेते हैं वेदर इट इज द सेम कीवर्ड or is there any difference, it's same only। so let's save this and go back to our browser, go back, refresh, and click on this, you can see the dialog has opened। ठीक है, so this is how you create a dialog। dialog is nothing but a pop-up। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पेज पे हो या फिर लिस्ट व्यू पे हो और आपको किसी एक क्लिक पे, जैसे कोई भी एक्शन हो, आप किसी एक फॉर्म को या एक रो को एडिट करना चाहते हो, उस एडिट पे क्लिक करो एंड देन यू वांट टू शो अ पॉपअप, तो उसके लिए आप ये डायलॉग और फ्रैगमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, फ्रैगमेंट कॉल बैक देख लो क्या होता है। जब आपने इस डायलॉग को ओपन किया है, नाउ इफ यू वांट टू क्लोज इट यू कांट क्लोज दिस, राइट। इसमें कोई एक्शन दिया ही नहीं है क्लोज करने के लिए। the only way you can get rid of this dialog is you need to refresh this page। ठीक है, तो हम एक कॉल बैक फंक्शन ऐड करेंगे इस डायलॉग में, और उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल गो बैक टू आवर कोड, और जो हमारा ये डायलॉग है विच इज हियर, इसमें हम एक बिगिन बटन ऐड करेंगे डायलॉग के अंदर। ठीक है, और फिर डायलॉग को इस तरह ना क्लोज करके वी विल हैव इट्स ओन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स लाइक दिस। ठीक है, अब फिर इसके अंदर डायलॉग के अंदर आप क्या करो, एक टैग ऐड करो विच इज बिगिन बटन। बिगिन बटन ओपन क्लोज टैग्स ले लो, और फिर इसके अंदर अगेन यू कैन कीप ए बटन with a property text which is going to be again
from the I18N file, I18N dialog close button text, ठीक है. And another property would be press event, which is going to be on close dialog, ठीक है. और we are good. If we save this now, since you have added one more event which is on close dialog, तो इसकी हैंडलिंग भी कर लेते हैं कंट्रोलर में. जस्ट आफ्टर दिस फंक्शन वी कैन ऐड वन मोर फंक्शन विच इज गोइंग टू बी ऑन क्लोज डायलॉग. और इसके अंदर आप क्या करोगे, दिस डॉट बाई आईडी आप कैच करोगे उस एलिमेंट को बाई यूजिंग दिस डॉट बाई आईडी, ठीक है. और इसके अंदर आप पास कर सकते हो जो भी आईडी आपकी थी इस फ्रैगमेंट में. अगर आप जाते हो, सो दिस इट हैज़ एन आईडी राइट, हेलो डायलॉग, तो आप हेलो डायलॉग को कॉपी करो और फिर यहाँ पे डाल दो. वंस यू डू दिस यू हैव अ रेफरेंस टू द डायलॉग बॉक्स, ठीक है. और अब आप उसको सिंपली यू कैन यूज दिस मेथड क्लोज मेथड, ठीक है. इसको सेव करो और आई थिंक यू शुड बी गुड. इस जस्ट कि हमने जो एक यहाँ पे I18 टेक्स्ट ऐड किया है, दिस वन डायलॉग क्लोज बटन टेक्स्ट, इसको हम ऐड कर लेते हैं I18 प्रॉपर्टी में. लाइक दिस वी कैन सेव इट एंड गो बैक टू आवर ब्राउजर, रीलोड दिस. और फिर इस पे जब क्लिक करते हैं बिगिन बटन का बी कैपिटल होगा. नाउ सेव इट अगेन, इसको सेव किया, ठीक है. हेलो वर्ल्ड खुल गया, यहाँ पे एक ओके बटन भी आ गया. इसको क्लिक किया, ये गायब हो गया, ठीक है. तो हमने एक कॉल बैक फंक्शन ऐड कर दिया फ्रैगमेंट के अंदर. लेट्स नाउ ऐड वन आइकॉन. देखो आइकॉन ऐड करने के लिए आप एक चीज देख लो, एसएपी आइकॉन्स पे जाओ और हियर यू कैन सर्च फॉर एनी आइकन. आप यहाँ पे ब्राउज लाइब्रेरी पे करोगे तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ आइकन्स अवेलेबल हियर. जैसे किसी भी मान लो एक अलर्ट आप डालना चाहते हो, सो दीज आर दी आइकन्स दैट यू कैन यूज. और किसी एक आइकन को यूज करना है तो उस पर आप क्लिक करो तो उसके सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है. ये जनरली जो आइकन प्रॉपर्टी आप यूज करते हो उसके अंदर ये आप मेंशन कर दो तो ये ऑलरेडी ये आइकन वहाँ पे ऐड हो जाएगा जिस किसी भी कंपोनेंट में या कंट्रोल में आप डाल रहे होगे, ठीक है. सो द आइकॉन विच वी आर गोइंग टू यूज हियर कैन बी एनीथिंग. जैसे अगर मैं हेलो वर्ल्ड का ही ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से, तो यहाँ पे ये इसको कॉपी कर लो, गो बैक टू योर कोड, और जो तुम्हारा हेलो पैनल है इसमें बटन के अंदर आप डाल सकते हो, किसी इनपुट फील्ड के अंदर डाल सकते हो, जहाँ पे भी आप ये आइकन प्रॉपर्टी डाल के ये जो टेक्स्ट है उसको अगर मेंशन कर दोगे एससीपी डैश आइकॉन और जो भी आइकन आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो वो वहाँ पे दिख जाएगा. अगर इसको सेव करते हैं एंड विल गो टू आवर ब्राउज़र और इसको रिफ्रेश करते हैं, सो यू कैन सी यहाँ पे देखो ये आइकॉन आ गया, ठीक है. अगर चाहिए आपको इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक आइकन चाहिए तो वहाँ पे भी आइकन डल जाएगा. वहाँ पे कैसे चाहिए डालना होगा, यू गो टू योर फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट के अंदर में ये जो टाइटल है बिगिन बटन के ऊपर आपको कंटेंट डालना होगा, ठीक है. कंटेंट ओपन क्लोज करो और यहाँ पे जो जाएगा आपका, देखो डायलॉग जब आपने ऐड किया है तो इसका पहले तो आप टाइटल डाले हुए हो, तो जो टाइटल डाल रहे हो वो यहाँ आ रहा है ऊपर में, ये होगा आपके डायलॉग का टाइटल. और बिगिन बटन यहाँ पे जो आपने डाला हुआ है वो बिल्कुल लास्ट में आ रहा है यहाँ पे, ओके. फिर कंटेंट के अंदर जो भी आपका कोड जाएगा वो यहाँ बीच में शो करेगा, ठीक है. तो इफ यू वांट टू ऐड जस्ट एन आइकॉन यू कैन यूज दिस टैग called core colon icon, and then you can mention few properties like source के अंदर आप sap dash icon और कोई भी आइकन यूज कर सकते हो. इन आवर केस वी वर यूजिंग हेलो वर्ल्ड तो वही डाल देते हैं. उसका फिर आप साइज डिफाइन कर सकते हो, इन दिस केस लेट्स से 5 rem, और क्लास डाल सकते हो विच कैन बी sap ui मीडियम मार्जिन, ठीक है. फिर इसको क्लोज कर देते हैं.
सेव कर लो, लेट्स गो बैक टू योर ब्राउजर, रिफ्रेश, से हेलो विद डायलॉग, और यहाँ पे ये आइकन आ गया, ठीक है। तो दिस इज डन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी एग्रीगेशन बाइंडिंग। तो देखो इस स्टेप में वी विल एक्सप्लोर द फीचर्स ऑफ डेटा बाइंडिंग्स, ठीक है। हम एक जेसोन ऐड करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, एंड देन वी विल ऐड दैट डेटा इनटू आवर टेबल। हम एक छोटा सा व्यू क्रिएट करेंगे इनवॉइस लिस्ट का, एंड देन वी विल गेट द डेटा, द इनवॉइसेस from the JSON that we will create into our application. So let's start with creating the file. I have copied the content from the demo kit. You can also do that. Just go to your code and inside web app folder, create one file called invoices.json और फिर इसमें एक डेटा रख लो, ठीक है। सिंपल एक एरे है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक एरे है इनवॉइसेस नाम का, एंड यू हैव few entries here, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू कि इसको हम मॉडल डिफाइन करेंगे। सो मॉडल डिफाइन करने के लिए लेट मी क्लोज फर्स्ट ऑल दीज ओपन फाइल्स। वेयर डू वी डिफाइन अ मॉडल? हमारे मैनिफेस्ट डॉट जेसन में, ठीक है। SAP UI5 सेक्शन में मॉडल्स सेक्शन है, ठीक है। So far we have just one model, I18N model, and we are using this model already at different places. तो इसी के साथ में एक और मॉडल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, विच इज गोइंग टू बी, लेट्स नेम इट इनवॉइस। और फिर आप इसमें देख लो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। यू कैन मेंशन द टाइप विच इज गोइंग टू बी sap.ui.model.json.json model, ठीक है। एंड देन यू कैन मेंशन द URI from where you are and then you can mention the URI which is going to be invoices.json, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमा रहेगा, इसको सेव कर लो। Now once you do this, so in this step you are actually initializing this model। जैसे आप you can initialize a model directly into a controller also, ठीक है। जैसे hello panel controller है, and if you want to initialize a model, a JSON model, आप क्या करोगे, न्यू कीवर्ड यूज करके जेसन मॉडल इनिशियलाइज कर सकते हो, राइट। और उसके अंदर कोई भी एक प्रॉपर्टी आई मीन जेसन पास कर दो, जेसन पास कर दो, ठीक है। हेलो डाल दिया, और फिर ऊपर में क्या करोगे आप, इस जेसन मॉडल को यूज करना है तो यू विल हैव टू मेंशन द पाथ हियर आल्सो, SAP UI मॉडल जेसन जेसन मॉडल जो यहाँ पे आपने मेंशन किया है। तो रादर देन डूइंग दैट हम क्या कर रहे हैं कि वी आर डिफाइनिंग दिस मॉडल इनटू आवर manifest.json फाइल। और जब ये यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन हो गया तो ये इनवॉइस नेम से ये मॉडल यू कैन एक्सेस इट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ योर एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ भी इसकी इस मॉडल की जरूरत पड़ेगी। तो ये मॉडल बन गया और हमने invoices.json इसका URI मेंशन कर दिया। तो आपका ये जो डेटा है, दिस डेटा विल बी अवेलेबल इन दिस, इन फॉर्म ऑफ दिस मॉडल जो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो कैसे इसको बाइंड करेंगे, हम एक व्यू बना लेते हैं, ठीक है, एक लिस्ट व्यू बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए वी विल गो इनसाइड आवर व्यू फोल्डर, और व्यू फोल्डर में लेट्स क्रिएट वन फाइल विद द नेम इनवॉइस लिस्ट डॉट व्यू डॉट XML। और let me just copy paste the content of this file and then I'll explain what is happening। तो सिंपल MVC कोलन व्यू और नेम स्पेसेस यहाँ पे डिफाइन है, SAPM और SAP UI core MVC। उसके बाद एक लिस्ट कंट्रोल ऐड। अच्छा, ये जितने भी कंट्रोल्स में ऐड यहाँ पे होते हैं, जैसे कि ये लिस्ट है, फिर इसके पहले सेशन में हमने ऐड किया था यहाँ पे, वी गो टू आवर हेलो डायलॉग फ्रैगमेंट, तो यहाँ पे एक डायलॉग कंट्रोल देख रहे हो, ये ऐड हुआ है। तो इसमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप को हार्डकोर याद रखने की जरूरत नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी ये डायलॉग कंट्रोल जो यूज हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ पे मिलेगा, इसका कोड कहाँ मिलेगा, या कौन सी प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है इस कंट्रोल के लिए। तो यू जस्ट गो टू
UI5 demo kit, and then you कैन गो टू API रेफरेंस, और यहाँ पे जो भी कंट्रोल आपको चाहिए वो आप टाइप कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी SAP M dialog, if I can type sap.m.dialog, ठीक है. तो ये डायलॉग क्लास यहाँ पे दिख गई आपको. यहाँ पे इसका आप सैंपल भी देख सकते हो, ठीक है. इफ यू गो टू सैंपल सेक्शन और आप यहाँ पे भी सर्च करोगे तो यहाँ भी आपको डायलॉग मिल जाएगा, एंड यू कैन सी डिफरेंट सैंपल्स. यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो इट इज शोइंग यू कि देखो ये एक डायलॉग है, एक सैंपल दिख रहा है कि कैसे काम कर रहा है ये. और इफ यू वांट टू चेक आउट द कोड की, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डायलॉग्स हैं. ये इसका फिक्स्ड साइज है, फिर ये रीसाइजेबल है, तो इसको आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हो. इसको क्लोज कर लेते हैं. ड्रैगेबल है, विद प्रिवेंट क्लोज है. तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ डायलॉग्स, इफ यू वांट टू चेक आउट द कोड कि इसका कोड क्या है, तो देखो ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा. ये व्यू है, इसके लिए ये सारे डिफरेंट बटन्स है. हर एक बटन में देखो एक इवेंट बाइंड करके रखा हुआ है इसने, जिसका आपको कंट्रोलर में मिल जाएगा. मतलब फंक्शंस के अंदर का लॉजिक जो भी लिखा हुआ है, ठीक है. और एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल है. तो ये तो आपको एक सैंपल मिल जाएगा. जिस किसी भी कंट्रोल को आपको यूज करना है, यू कैन जस्ट चेक आउट दैट कंट्रोल. जैसे सिंपली एक बटन को भी आप देखना है तो यू हैव टू काइंड्स ऑफ सैंपल्स हियर, बटन एंड बटन विथ बैच. अगर आपको यहाँ पे देखो डिफॉल्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, हर टाइप का बटन दिया हुआ है और सबका आपको यहाँ पे कोड भी मिल जाएगा, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी यूजफुल. आपको कुछ भी यहाँ से किसी भी टाइप का कंट्रोल चाहिए, टेबल चाहिए तो टेबल मिल जाएगा. देखो स्मार्ट टेबल भी है, और ट्री टेबल, टेबल, एंड टेबल भी कई टाइप के हैं, विद पर्सनलाइजेशन, विद एक्सपोर्ट. तो ये सारे सैंपल मिल जाएंगे. एक्सपोर्ट ऑप्शन यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज डिफरेंट ऑप्शन. तो दिस इज वेरी यूजफुल. API रेफरेंस जो मैं बता रहा था, जैसे आपने स्पेसिफिकली जैसे डायलॉग के केस में आपको देखना है, सो यू कैन चेक आउट द प्रॉपर्टीज. यहाँ पे उसका सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन है. कंस्ट्रक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एग्रीगेशन क्या है. तो देखो प्रॉपर्टीज में यू कैन सी ये सारी प्रॉपर्टीज, कंटेंट विथ ड्रैगेबल आइकॉन, जो हमने इसको यूज भी किया है. डायलॉग जो कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमने, सॉरी, आइकॉन प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं डाला है, हमने कंटेंट के अंदर डाला है. बट आइकॉन प्रॉपर्टी भी है जो आप यूज कर सकते हो. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज दैट वी आर यूजिंग? ओनली आईडी एंड टाइटल. तो वो भी तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगा. देखो एक टाइटल यहाँ पे है, और आईडी, आईडी एनीवे आप किसी भी कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो. तो ये टाइटल यहाँ जो दिख गया, टाइटल टेक्स्ट अपीयर इन द डायलॉग हेडर, द हेडिंग लेवल इन द डायलॉग इज H1. सारी डिटेल्स यहाँ उसकी मिल जाएंगी. विजिबिलिटी इसकी पब्लिक है, और हेडिंग इन द डायलॉग कंटेंट शुड स्टार्ट विथ H2 हेडिंग लेवल, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टीज हो गई. एग्रीगेशंस आप देख सकते हो, एंड एसोसिएशंस हैं, इवेंट्स हैं, आफ्टर क्लोज, आफ्टर ओपन, बिफोर क्लोज, बिफोर ओपन. So these are the details that you can get from here. So going back to our view, तो हमने ये जो लिस्ट कंट्रोल यहाँ यूज कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो चेक दिस. तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट डालूँ तो देखो एक लिस्ट क्लास आ गई, और इसकी प्रॉपर्टीज इफ यू वांट टू चेक, यू विल सी ओनली बैकग्राउंड डिजाइन. जैसे ये हेडर टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, तो इसको कॉपी करो और यहाँ पे सर्च करो हेडर टेक्स्ट. तो the header area can be used as a toolbar to add extra controls for user interactions. When set, this overrides header text property. तो देखो हेडर टूल बार का बता रहा है, जब अगर आप ये सेट करोगे तो ये हेडर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर देता है. बट वी आर लुकिंग फॉर इज हेडर टेक्स्ट ओनली. तो ये हेडर टेक्स्ट, देखो हेडर इसके अंदर है नहीं कहीं पे, कई बार आपको ऐसा भी दिखेगा. तो दैट मीन्स कि ये हेडर टेक्स्ट किसी और क्लास में होगा. जैसे यहाँ पे देखो एक्सटेंड कर रही है ये लिस्ट बेस क्लास को, ठीक है. तो अगर आप लिस्ट बेस क्लास में जाओगे तो शायद वहां पे आपको मिल सकता है व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, विच इज हेडर टेक्स्ट. तो देखो यहाँ मिल गया प्रॉपर्टीज में, ठीक है. दैट इज वाई योर लिस्ट क्लास ऑल्सो कैन यूज दिस प्रॉपर्टी हेडर टेक्स्ट, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो what are the properties that you can use. और
आप सैंपल भी चेक कर सकते हो यहाँ एपीआई रेफरेंस में ही। इफ यू गो टू योर लिस्ट और यहाँ पे इसका सैंपल देखोगे, सो दीज आर द काइंड ऑफ लिस्ट दैट आर अवेलेबल हियर। यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स हैं, यू कैन गो टू एनी सैंपल और यहाँ पे लिस्ट, इस टाइप की कुछ लिस्ट लोड हो रही है। यू कैन चेक आउट दी कोड ऑल्सो। तो देखो कोड यहाँ पे इस टाइप का ही बना है, ठीक है। लिस्ट कंट्रोल यूज हो रहा है, उसका आईडी है और आइटम्स हैं इसके अंदर। अगेन स्टैंडर्ड लिस्ट आइटम है। दिस इज क्वाइट यूजफुल, इसलिए मैंने ये आपको दिखा दिया। यूजिंग दिस एपीआई रेफरेंस एंड सैम्पल्स यू कैन बेसिकली क्रिएट एवरीथिंग। सो लेट्स गो बैक टू आवर कोड। हमने एक लिस्ट ऐड किया है यहाँ पे एंड दिस इज व्हाट वी हैड ओपन। एंड तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ ऐड की हैं, हेडर टेक्स्ट क्लास विड्थ एंड आइटम। आइटम्स देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट को हमें यहाँ पे बाइंड करना होगा आइटम्स प्रॉपर्टी से, ठीक है। आइटम्स को भी अगर आप चेकआउट करोगे, सो ईदर इट विल बी इनसाइड योर लिस्ट और बेस लिस्ट में होगा, उसको देख लेते हैं। इफ वी गो टू लिस्ट एंड सर्च फॉर आइटम्स, तो देखो आइटम्स प्रॉपर्टी है डिफॉल्ट डिफाइंस द आइटम्स कंटेन्ड विद इन दिस कंट्रोल, ठीक है। बोरोड फ्रॉम एसएपी एम लिस्ट बेस, यहाँ से ये आई हुई है। सो लिस्ट बेस क्लास में भी अगर हम चलें एंड इफ वी लुक फॉर आइटम्स, काफ़ी जगह है आइटम्स। यहीं पे है शुरू में, ठीक है। डिफाइंस द आइटम्स कंटेंट विद इन दिस कंट्रोल, ठीक है। तो फिर अगर इसको एक्सेस कर सकते हो तो फिर ग्रेटर देन और स्लैश यूज करके आप इनवॉइसेस विद कैपिटल आई आप यूज कर सकते हो। क्योंकि अगर इस फाइल में जाओगे इनवॉइसेस डॉट जेसन, तो इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही एरे है विद द नेम इनवॉइसेस, तो वो आपने यहाँ पे उस एरे को क्या कर दिया है, बाइंड कर दिया है इस आइटम पे। उसके बाद एक आइटम्स डाला हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम इसके अंदर है विद अ टाइटल एंड दैट्स इट। और आप इनवॉइस मॉडल को यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपने आइटम्स डाला होता है और फिर उसके आगे आप क्या डालते हो, जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को उठाओगे तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ऐसे आप बाइंड कर सकते हो। क्वांटिटी डाल दिया, प्रोडक्ट नेम डाल दिया यहाँ से उठा करके, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज बाइंड कर दिया एंड दिस इज हाउ यू बाइंड इट। और अब इसको सेव करो, यू गो बैक टू योर ब्राउजर, इसको रिफ्रेश करो एंड यू शुड बी एबल टू सी द लिस्ट। आई थिंक ये इनवॉइस लिस्ट हमने क्रिएट तो कर ली है पर अपने ऐप व्यू में उसको ऐड नहीं किया है, राइट। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए क्या करना होगा, इस को ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे व्यू के बाद हेलो पैनल की जगह इनवॉइस लिस्ट दे देते हैं। और वन मोर थिंग विच वी नीड टू ऐड, दैट इज दी i18 टेक्स्ट, ठीक है। तो i18 फाइल में गए, प्रॉपर्टीज फाइल में, और यहाँ पे हमने इनवॉइस लिस्ट टाइटल ऐड कर दिया। इसको सेव किया, गो बैक टू योर ब्राउजर एंड यू कैन सी द लिस्ट, ठीक है। तो ये लिस्ट आइटम्स जो हैं अभी ये कहाँ से आ रहे हैं, जो इनवॉइसेस डॉट जेसन बना हुआ है वहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट का नेम है और क्वांटिटी है, ठीक है। सो इस तरह से आप ऐड कर लोगे एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एग्रीगेशन बाइंडिंग। डेटा टाइप्स देख लो क्या होता है। डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए आप क्या करो, अब ये जो इनवॉइस लिस्ट का जो व्यू बना है ना आपका, इसका एक कंट्रोलर डिफाइन कर लो सबसे पहले तो। so I will just add the name of the controller, and for that I'll have to type controller name, and that is going to be ui5 dot walkthrough dot controller dot invoice list, and then we will have to add one number and number unit inside this object list item, ठीक है। तो इसमें टाइटल है, इस टाइटल के बाद में ये ऐड कर दिया है मैंने, ठीक है। नंबर प्रॉपर्टी है, नंबर प्रॉपर्टी में जेसन पास किया हुआ है एंड दिस जेसन आल्सो हैज फ्यू पार्ट्स। तो एक पार्ट्स है जिसमें आपने एक एरे पास किया है, फिर टाइप है, फिर फॉर्मेट ऑप्शंस है। पार्ट्स में जो एरे पास कर रहे हो उसमें आप क्या कह रहे हो कि एक तो एक्सटेंडेड प्राइस ले रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी है। इफ यू गो बैक टू योर, लेट मी जस्ट सेव दिस एंड
close all the other files. App view, we do not need this. Again, we do not need all these files. ये देखो एक्सटेंडेड प्राइस जो प्रॉपर्टी है उसको आप एक्सेस कर रहे हो यहाँ पे, एंड द करेंसी, और ये आप व्यू से ले रहे हो। एक नया मॉडल आ गया है। अब ये व्यू मॉडल कहाँ से आ गया है? वी विल हैव टू डिफाइन दिस मॉडल, वो हम डिफाइन करेंगे आगे, और वो वहां से करेंसी ले ले रहा है। तो ये आप पार्ट्स डिफाइन कर सकते हो नंबर प्रॉपर्टी का, जो अब आपको मैं व्यू में दिखाऊंगा तो फिर पता चलेगा कि ये पार्ट्स क्या हैं। यू कैन मेंशन द डेटा टाइप ऑल्सो, पे वो करेंसी रख दिया है, और फॉर्मेट ऑप्शंस क्या है अभी के लिए, शो मेजर हमने फॉल्स रखा है। सो लेट्स क्रिएट वन कंट्रोलर फर्स्ट। यहाँ पे हमने SAP, इसका बस स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ मैं, UI5 वॉक थ्रू कंट्रोलर इनवॉइस लिस्ट। ठीक है, वी आर गुड। एंड नाउ इनसाइड आवर कंट्रोलर we will create one file called invoice list dot controller dot js, and inside this we will do sap dot ui dot define, and this will have one array and one callback function, right? तो array में क्या क्या डिफाइन करेंगे हम? array में we can have sap ui core mvc, and then controller, and then again sap ui model json and json model, ये हो गया। and then these two should be passed as a parameter to this callback, तो वो भी कर लेते हैं, and then we are good. First type use strict, and then you have to return the controller। ठीक है, तो controller dot extend, not this, extend, ये return, और extend के बाद क्या करते हैं, सबसे पहला पैरामीटर which is going to be the path of this controller, right? So UI5 dot walkthrough dot controller and dot invoice list, और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास करोगे आप, जिसके अंदर आप डिफाइन करोगे सारे के सारे मेथड्स। तो ऑन इनिट पे ही हम कॉल कर लेंगे जो हमें व्यू क्रिएट करना है ना, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इनवॉइस लिस्ट व्यू में। वी आर यूजिंग अ न्यू मॉडल, तो इस मॉडल, ये मॉडल तो डिफाइन है नहीं मैनिफेस्ट डॉट जेसन में, सिर्फ इनवॉइस वाला है, तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। नाउ क्रिएट करने के लिए यू कैन जस्ट सिंपली टाइप ऑन व्यू ओ व्यू मॉडल, एंड दिस विल बी न्यू जेसन मॉडल, और हम इसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखेंगे विच इज गोइंग टू बी करेंसी। ठीक है, एंड दिस इज EUR, एंड देन वी आर गुड। अब इसको हम सेट कर सकते हैं कैसे, दिस डॉट गेट व्यू डॉट सेट मॉडल। तो इस व्यू पे ये मॉडल सेट हो जाएगा, एंड यू कैन पास दिस मॉडल, एंड यू कैन नेम दिस मॉडल एज व्यू। ठीक है, व्यू नाम इसको दे रहे हो आप, तभी तो इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो व्यू नाम से। ठीक है, सो ये यहाँ पे हो गया, एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। तो सेव किया, लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, एंड SAP UI core MVC XML व्यू। कंट्रोलर नेम, कुछ तो कंट्रोलर नेम हमने गलत मेंशन किया है, यहाँ पे ये कंट्रोलर नेम होगा। इसको सेव करते हैं and refresh it again something is wrong, UI5 walkthrough controller invoice list controller script load module error failed to load this। ये लोड नहीं हो पा रहा है बिकॉज नेम गलत मेंशनड है क्या? कंट्रोलर कहीं अलग जगह बना दिया हमने, व्यू के अंदर बन गया है। इसको लेट्स मूव इनसाइड आवर कंट्रोलर फोल्डर, मूव कर लिया, आई थिंक नाउ वी आर गुड। रिफ्रेश किया, एंड हियर वी हैव द नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। और जो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो हमने पार्ट्स यहाँ डिफाइन किए हैं नंबर के, तो ये पार्ट्स समझ लो कि पार्ट्स क्या कर रहा है। देखो, इसको मल्टी बाइंडिंग कहते हैं।
जो अलग अलग मॉडल वैल्यूज को कंबाइन करके आप यूज कर सकते हो। तो जैसे एक आपने मॉडल इनवॉइस से उठाया है और एक मॉडल व्यू से उठाया है, ठीक है, ये दो डिफरेंट मॉडल्स हैं। यहाँ से आप उसका प्राइस उठा रहे हो और एक करेंसी आपने बना डिफाइन करके रखी है इसी कंट्रोलर में, विच इज EUR, तो यूरो, और वो आप यहाँ पे यूज कर ले रहे हो ना, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप मेंशन किया हुआ है करेंसी इस नंबर का। तो ये जो डेटा है ना, इसको ऑलरेडी ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी हुई है फॉर्मेट ऑप्शंस में शो मेजर, ठीक है। तो शो मेजर फॉल्स का मतलब हो गया कि करेंसी सिंबल आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ नंबर शो करेंगे। अगर इसको आप ट्रू कर देते हो तो सिंबल भी दिखेगा आपको, ठीक है। इसको अगर आप रिफ्रेश करो, नाउ यू कैन सी यहाँ पे EUR भी दिख रहा है। बट अगर आप इसको फॉल्स रहने देते हो, नाउ यू सेव इट, रिफ्रेश अगेन, तो अभी आपको नहीं दिख रहा है इसका सिंबल, ठीक है। सो ये इन चीज़ों का सिग्निफिकेंस है। तो दिस वाज योर डेटा टाइप्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन बाइंडिंग। देखो एक्सप्रेशन बाइंडिंग क्या हुआ, समटाइम्स जो SAP UI5 के प्री डिफाइंड टाइप्स होते हैं ना, दोज आर नॉट फ्लेक्सिबल इनफ, एंड यू वांट टू डू अ सिंपल कैलकुलेशन या सिंपल फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो। और वो कैसे यूज करोगे, इसका एग्जांपल यहाँ पे शो हुआ है। सो यू हैव टू प्रॉपर्टीज, नंबर एंड नंबर यूनिट। यू कैन ऐड वन मोर प्रॉपर्टी हियर विच इज गोइंग टू बी नंबर स्टेट, ठीक है। और ये करेगा क्या, इसमें फिलहाल के लिए मैं पहले एक्सप्रेशन ऐड कर दे रहा हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि हमने यहाँ पे किया क्या है। सबसे पहले तो देखो, किसी एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना है तो आप इक्वल साइन के साथ शुरू करते हो। द मोमेंट यू type equals this symbol inside a curly bracket, the framework uh, did the framework understands कि ठीक है, आप यहाँ पे एक एक्सप्रेशन डिफाइन करके रख रहे हो और उसको उसी मैनर में वो रीड करेगा, ठीक है। तो फिर एक्सप्रेशन इक्वल डालने के बाद यू कैन मेंशन एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कोई डाल दो, तो इनवॉइस, और लेट्स से वी आर टेकिंग एक्सटेंडेड प्राइस, एक्सटेंडेड प्राइस। और फिर आप एक कंडीशन डाल रहे हो कि अगर ये 50 से बड़ी है देन द स्टेट शुड बी एरर, और अगर नहीं है तो फिर द स्टेट शुड बी सक्सेस, ठीक है। ये नंबर स्टेट एक प्रॉपर्टी है जिसमें ये एक्सपेक्ट करता है आप इस तरह के स्टेट्स जो है वो पास करो। अगर इसको चेक करना है, सो लेट्स गो टू आवर लिस्ट, ठीक है। लिस्ट में चलते हैं, लेट मी ओपन आवर लिस्ट बेस, नहीं इसको, यू कैन गो बैक। ये ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम में है ना, तो ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम को सर्च करते हैं। ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम मिल गया, और यहाँ पे अगर आप नंबर स्टेट को सर्च करोगे तो देखो ये नंबर स्टेट मिल गया। ये क्या बोल रहा है, डिफाइंस द ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम नंबर एंड नंबर यूनिट स्टेट वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू स्टेट पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो ये सारी वैल्यूज हैं, एरर है, नन है, सक्सेस है, वार्निंग है। तो ये सब आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, जिसमें से हमने दो यूज भी किया है, एरर और सक्सेस, ठीक है। जैसे अगर आप इसकी वैल्यू सिर्फ सक्सेस रखते हो, ये हटा के, तो काम चलेगा। अगर आप इसकी वैल्यू सिर्फ सक्सेस दे देते हो, सेव करो, और यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करो, तो ये सारे के सारे जो है ग्रीन कलर में हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप एरर डालते हो स्टेटस, तो रेड कलर में हो जाएंगे, वार्निंग से येलो कलर रहेगा। तो नाउ आपको करना क्या है, इनका कलर कंडीशनली आपको शो करना है। दैट मीन्स जो कंडीशन हमने एक्सप्रेशन में रखी थी कि अगर ये एक्सटेंडेड प्राइस 50 से ज़्यादा है तो रेड कलर में शो करो, अदरवाइज ग्रीन में करो। तो इसको सेव कर लो और लेट्स जस्ट चेक। तो देखो दिस इज मोर देन 50, तो ये रेड में शो हो रहा है, बाकी ग्रीन में शो हो रहा है। तो सच customization on the state of the number you can also do by using expression binding. So this was your expression binding, and next topic we have custom formatters. को अगर एक कस्टम फॉर्मेटर सेट करना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, वो इस स्टेप में हम जानेंगे। So you can create one folder inside your web app, and that is going to be
model, and inside model you can create one file which will be called formatter.js, and inside this file let's create sap.ui.define, not this, .ui.define, or this will have an array and a callback function. Inside callback just mention the use strict और फिर सिंपली आप रिटर्न कर लो. रिटर्न में we will have status text. This will expect and this will expect an, और ये expect करेगा एक पैरम वो resource bundle, and this is going to be this dot get owner component. जब आप this dot get owner component करते हो तो यानी कि जो इसका ओनर कंपोनेंट है ना, जो आपने component डॉट जेएस फाइल बेसिकली जो आपकी है उसको आप फेच कर रहे होते हो. दैट मीन्स कि इस कंपोनेंट में आपने जो मॉडल्स डिफाइन किए होंगे उसको आप गेट कर सकते हो यूजिंग दिस डॉट गेट ओनर कंपोनेंट. ठीक है, और फिर आप करोगे गेट मॉडल में आप पास कर रहे हो क्या i18n. ठीक है, क्योंकि वो वहां पे सेट किया है आपने. और फिर गेट रिसोर्स बंडल. ठीक है, और उसके बाद वी आर गुड. गेट रिसोर्स बंडल का बी कैपिटल रहेगा. तो ये हमने क्यों किया है, क्योंकि इस रिसोर्स बंडल की हमें जरूरत पड़ेगी. दैट इज वाई वी हैव डन गेट ओनर कंपोनेंट, गेट मॉडल एंड गेट रिसोर्स बंडल. अभी यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट लिखेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी एस स्टेटस. जो स्टेटस हम पास करेंगे इसके अंदर उसके बेसिस पे ही स्विच करेंगे. तो डिफरेंट केसेस हैं. आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दीज केसेस हियर जस्ट टू सेव सम टाइम. ठीक है, इसको सेव किया. केस ए बी सी एंड डिफॉल्ट. तो अगर केस ए होगा जो हम लोग यहाँ पास करेंगे स्टेटस, वो अगर ए से मैच करेगा तो स्टेटस ए, इनवॉइस स्टेटस बी, इनवॉइस स्टेटस सी, ये टेक्स्ट ये लेगा यहाँ से. कहाँ से? आप हमारी i18 फाइल से. तो इन सबको ऐड कर लेते हैं i18 फाइल में. कैसे ऐड करेंगे? वी विल जस्ट ऐड दीज टेक्स्ट एट द एंड ऑफ आवर i18 फाइल. इनवॉइस स्टेटस ए बी एंड सी, न्यू, इन प्रोग्रेस एंड डन. और एक फर्स्ट स्टेटस टैग ऐड कर लेंगे हम इनसाइड आवर इनवॉइस लिस्ट डॉट व्यू डॉट एक्सएमएल. तो यहाँ पे हम एक नेम स्पेस और ऐड करेंगे विच इज गोइंग टू बी एक्सएमएल नेम स्पेस कोलन core, and that will be sap.ui.core, and we are good. And apart from that we can add one status here. I mean one tag which is going to be first status. Let me close this. और इसके अंदर हम डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट स्टेटस. ऑब्जेक्ट स्टेटस अगेन ये जो मैं कंट्रोल्स यूज कर रहा हूँ, दिस कंट्रोल्स आर अवेलेबल ऑन डेमो किट. इस कंट्रोल को जा करके यू कैन स्टडी फर्दर कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेथड्स हैं. तो कोर कॉलन रिक्वायर एंड देन वी कैन पास इनसाइड करली ब्रैकेट्स फॉर्मेटर. ठीक है, फॉर्मेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं? you can mention inside single quotes ui5 slash walkthrough slash model slash formatter. ठीक है, जो फॉर्मेटर हमने बनाया है उसका पाथ हमने यहाँ मेंशन कर दिया. एंड दैट्स इट. उसके बाद बंद कर देते हैं इसको और फिर एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी दे देते हैं which is going to be again inside your curly brackets. This will have two properties. One is path colon invoice and status, और दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी फॉर्मेटर.
which is going to be formatter dot status text डॉट बाइंड, और फिर इसके अंदर आप पास कर दो डॉलर कंट्रोलर, ठीक है, एंड लेट्स जस्ट क्लोज दिस, और फिर बिल्कुल लास्ट में हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ऑब्जेक्ट स्टेटस कंट्रोल में आपने एक प्रॉपर्टी यूज रखी है कोर रिक्वायर और एक टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट में आप पास कर रहे हो इनवॉइस का स्टेटस, और फॉर्मेटर आप यूज कर रहे हो लाइक दिस फॉर्मेटर डॉट स्टेटस टेक्स्ट, और फिर बाइंड कर रहे हो इस कंट्रोलर को। ये स्टेटस टेक्स्ट जो है आपने फॉर्मेटर यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो स्टेटस टेक्स्ट को, तो इसको कॉल करोगे आप। और इस फॉर्मेटर से कैसे यूज करो, क्योंकि ये आपने डिफाइन कर दिया है यहाँ पे और उसका पाथ दे दिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। तो फर्स्ट आपने ये फॉर्मेटर डिफाइन कर दिया, फिर उसके बाद फॉर्मेटर डॉट करके इसके अंदर जो आपने ये बनाया हुआ है फंक्शन, इसको आप एक्सेस कर रहे हो, और इसमें आप बाइंड कर रहे हो कंट्रोलर, डॉलर कंट्रोलर, मतलब कि यहाँ से आपको जो स्टेटस है वो पास होगा, और फिर बेसिस पे इसके कि उसकी वैल्यू ए है या बी है या सी है या कोई और है, तो ये जो हमने टेक्स्ट यहाँ पे सेट किया है न्यू इन प्रोग्रेस वो शो होगा। तो एक डेमो देख लेते हैं इसका। लेट्स जस्ट गो टू आवर ब्राउजर एंड जस्ट रिफ्रेश दिस पेज। समथिंग इज नॉट SAPM first status.js. If we go back to our formatter, not formatter, invoice list, तो फर्स्ट स्टेटस जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज इनसाइड आवर, अच्छा ऑब्जेक्ट लिस्ट आइटम के बाहर हो गया ना ये, तो इसको अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको अगर मैं क्लोज करूँ तो क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। वी विल कट दिस एंड आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेटस वी विल एंड दिस, और इसको सेव करो एंड नाउ रिफ्रेश इट बैक एंड आई थिंक should be good। कंटेनर कुछ तो हमने गलत किया है, दिस डॉट गेट ओनर कंपोनेंट, गेट मॉडल i18 है एंड गेट रिसोर्स बंडल, दिस इज गुड। अच्छा ये हमने सही सेट नहीं किया है, ये ऐसे सेट होगा, नाउ वी शुड बी गुड। ये देखो सिंगल कोट यहाँ बंद नहीं किया है, और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी नहीं है बंद, और यहाँ पे तो बंद है, तो ये ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं और फिर से इसको चेक करते हैं। स्टेटस तो शो नहीं कर रहा है बिकॉज आई थिंक इसका नेम डिफरेंट होगा। इफ यू गो टू इनवॉइसेस डॉट जेसन, देखो कैपिटल एस के साथ है ये स्टेटस, ठीक है, A B B C। सो वील गो बैक टू आवर इनवॉइसेस लिस्ट, तो कैपिटल एस करते हैं, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश, और यहाँ पे देखो स्टेटस ऐड हो गया, ठीक है, न्यू इन प्रोग्रेस डन न्यू। तो ये कस्टम फॉर्मेटर आपने क्रिएट कर लिया है बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी जो इनवॉइस डॉट जेसन में है। ये स्टेटस प्रॉपर्टी के बेस पे आप एक कस्टम फॉर्मेटर सेटअप कर लिए हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्टरिंग।